हेलो एवरीवन। ये मैं सेकंड पीयूसी कर्नाटका बोर्ड सेकंड पीयूसी शेवधि भाग 2 इसके फर्स्ट लेसन प्रथम पाठ को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग पुराण भारतम के पहले पीठिका को आप लोग देख लेंगे, इसके बाद मेन लेसन पे हम लोग आते हैं। First of all, we will see that what this lesson is depicting, what it is describing. Okay, like Puran Bharatam, as we know, this name is also pertaining to the our Bharat. Not we can't say India, because India is imposed by any other foreigners. So we are not feeling proud for telling our country as India. We are feeling proud after telling it Bharat. Okay, because it also possesses a very dignified and very divine meaning also in this word. So Bharat, Aryavart, these are our traditional name of this country. So Puran Bharatam, as we when we pronounce these words, पुराण भारतम मीन्स पुराण भारत, भारत का जो वर्णन पुराणों में है, मीन्स इन आवर हिस्ट्रीज, इन आवर ट्रेडिशनल epics depicted this Bharat as it is here also we are going to describe. पीठिका, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द पीठिका मीन्स व्हाट्स अबाउट दिस लेसन, व्हाई वी आर रीडिंग दिस लेसन, व्हाट्स described in this lesson, what's the motto of this lesson. So vivid puranebhya sangrihita means with several other puran, I can't say it's mythological tales, because mythology is another thing. Mythology means myths, and myths is not fact, it's only hypothetical things. So we can't say, we shouldn't say mythological tales or mythology. Our Puran is not mythology. Mythology is that things which is created by any person random by their own hypothetical status, but it's not, our Purana is not hypothetical, it's fully really, and it's our hoary past, it's our tradition. Okay, so we will always say that this is our history. Okay, so vivid puranebhya sangrihita, this lesson has extracted from other Puran, other history, our religious histories. Okay, then we are going to पीठिका. पीठिका पर हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है. भारतीय साहित्य अष्टादश पुराणानि प्रसिद्धानि. इन आवर इंडियन कल्चर, in our Indian culture, history of literature, we have 18 Purana. Okay, as we know already, तेषु पुराणेषु कर्म ज्ञानम भक्ति तत्वम च इत्यादयः बहवो विषया प्रस्तुता. Means in that histories, in all that Purana, what are the topics. Then here also it depicts, ये बताता है यहाँ पर कि क्या उसमें दिया गया है. तेषु पुराणेषु कर्म मीन्स उन पुराणों में कर्म के बारे में बताया गया है. मीन्स दे ऑल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट योर कर्मा. कर्मा मीन्स ड्यूटीज, वर्क्स. ओके, ज्ञानम मीन्स नॉलेज, डिवाइन नॉलेज अबाउट द परमात्मा, अबाउट द गॉड, अबाउट द आत्मा, अबाउट द प्रकृति, etc. in philosophical aspects also depicted. Bhakti means Ishwar Bhakti, etc. Tattvam cha, and Tattva means Gyan, only Gyan. Tattva means about the main element of this world, this physical or immortal, anything, whatever, means Atma, Paramatma, spiritual or physical, whatever, all these things are depicted. And in its, and this all comes in the circumstance of elements of tattva, elements. People say, but we can't say element because element is a particular thing. But tattva gyan, tattva
अलग है, वो अलग चीज़ है। तो बहवो विषया प्रस्तुता मीन्स देर आर सेवरल थिंग्स विच वी कैन फाउंड इन आवर पुराण। तथा पुराण भारतम विशेषतः वर्णितम। तो यहाँ पुराण भारत जो लेसन है यहाँ पर विशेष रूप से स्पेशली हम लोग यहाँ पर इसका वर्णन पढ़ेंगे, क्या क्या दिया गया है। प्रस्तुत पद्य भाग ब्रह्मांड वराह मार्कंडेय पद्य पद्म नारदीय विष्णुधर्मोत्तर ब्रह्म पुराणेभ्यः संगृहीतः। मीन्स इन दिस लेसन वी विल फाइंड द सेवरल पुराण श्लोकास which are extracted from other Purans like Brahmand Puran, Varaha Puran, Markandeya Puran, Padma Puran, Naradiya means Narada Puran, Vishnu Dharmottar and Brahma Puran. These all are Purans, and these lessons also contains the shlokas of this Purana. Okay, इन सारे पुराणों में से इनमें से लिया गया है श्लोक। भारतवर्षस्य भौगोलिक चित्रणम यथा पुराणम प्रदत्तम मीन्स इन आवर पुराण also Purans described about our Bharat by their geographical ways, geographical perspective they have also described. So we are also going for reading all that. तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमवत् दक्षिणं च यत् वर्षं तद्भारतं नाम यत्रेयं भारती प्रजा। उत्तरम यत् समुद्रस्य। अब यहाँ पर आपको शब्द रूप और धातु रूप ये दोनों अगर याद रहेंगे तो आपको अर्थ लगाने में भी कोई समस्या नहीं होगी, और वो जब याद नहीं रहेंगे तो फिर आपको हमेशा समस्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तरम यत् समुद्रस्य। यत् मीन्स जो समुद्र के उत्तर में है, उत्तर में स्थित है, मीन्स सिचुएटेड, वाट एवर दैट प्लेस विच इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ ओशियन। एंड हिमवत दक्षिणम चयत। और हिमवत का मतलब होता है हिमालय पर्वत। हिमवत दक्षिणम यानी हिमालय पर्वत के जो दक्षिण में है। तो अब देखिए, आप लोग जानते हो, यू ऑल्सो नो दैट इन आवर साउथर्न or southeast part is sea. By sea we also partitioned from Sri Lanka. So समुद्र जो है वो हमारे दक्षिण है, और दक्षिण के जो उत्तर में है वो हमारा जगह है। फिर उसी तरह से हमारे सबसे उत्तर में हिमालय है, और उस हिमालय से दक्षिण में हम लोग हैं, क्योंकि वो हमारे उत्तर है तो उसके दक्षिण हम लोग हो गए। तो उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमवत् दक्षिणम च यत् वर्षम तद भारतम नाम यत्रेयम भारती प्रजा। वही वर्ष, वही जगह, वह क्या है? भारत नाम है उसी जगह का जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में हो, और उसी जगह को हम लोग भारत कहते हैं। और उसकी जो प्रजा है मीन्स दैट पर्सन हु ऑल्सो लिव देयर ऑन दैट प्लेस, दैट्स कॉल्ड भारतीय। ओके, भारतीय असली नाम है, लेकिन भारतीय हम लोग अपने हिंदी में बोलते हैं। भरणाच्च प्रजानां वै मनुर्भरत उच्यते निरुक्त वचनाच्चैव वर्षं तद्भारतं स्मृतम्। अब ये क्वेश्चन आता है इन आवर माइंड ऑल्सो, यानी ए क्वेश्चन ऑल्सो अराइज दैट व्हाई दिस कंट्री ऑल्सो गॉट द नेम ऑफ भारत, व्हाई? तो ये बता रहा है, उसका एक्सप्लेन कर रहा है कि भरणाच्च प्रजानाम वही मनुर्भरत उच्यते। भरण का मतलब भरण पोषण करना, किसी को जो ज़रूरत होती है उस चीज़ को प्रदान करना, उस चीज़ को देना। मीन्स इफ़ एनीवन रिक्वायर्स एंड यू आर ऑल्सो बेस्टोइंग और गिविंग देम दैट पीपल, देन इट्स कॉल्ड भरण पोषण। ओके, सो भरणात् माने भरण के कारण, है ना। भरणात् यानी भरण पोषण करने के कारण सबसे पहले जो राजा हुए उनका नाम था मनु, और उन्हीं के जो संतान थे उनको क्या कहा गया? भरत कहा गया। ठीक है, उन्हीं के मनु को ही भरत कहा गया, चूँकि उन्होंने भरण पोषण किया। और इसी प्रकार से यही शब्द जब आगे इसका निरुक्त का मतलब होता है उसका बनावट जब हुआ, डिराइव हुआ, व्युत्पत्ति हुआ, तो उसी भरत की जो संतान थी उसको हम लोग भारत कहते हैं।
यानी मनु को ही भरत कहा गया क्योंकि वही पालन पोषण करते थे, है ना। एक भरत बाद में शकुंतला के भी पुत्र हुए थे, उनका भी इतिहास अलग है, लेकिन ये भरत, ये मनु को भी लक्षण के आधार पर उनको भरत कहा गया। जैसे जिसमें जो लक्षण होता है उसको उसका नाम दे दिया जाता है ना। जैसे श्री कृष्ण काले थे तो उनको कृष्ण कहा गया, जबकि उनका नाम वासुदेव था। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे जो लक्षण के आधार पर होते हैं। कुछ नाम उनके कर्म के आधार पर, कुछ नाम उनको मूल जो नाम है, असली नाम है, वो अलग है। इसी तरह से होता है। तो ये हो गया, यानी कि भरण करने के कारण मनु को भरत कहा गया और उन्हीं की प्रजा जो थी वो भारतीय प्रजा हो गई और उनका स्थान जो है भारत कहलाने लगा। इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यश्चान्तश्च गम्यते न खल्वन्यत्र मर्त्यानां भूमौ कर्म विधीयते। मीन्स अगर स्वर्ग पाना हो या मोक्ष पाना हो तो क्या है, यह जो भूमि है ये वही भूमि है जहाँ पर आप स्वर्ग और मोक्ष दोनों पा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ही कर्म करने के बाद आपको ऐसा फल प्राप्त होगा जिससे आपकी मुक्ति होगी, आपको स्वर्ग भी प्राप्त होगा, है ना। क्योंकि यहाँ इसके अतिरिक्त, इस पृथ्वी के अतिरिक्त आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर कर्म का विधान नहीं है। स्वर्ग में आपको कर्म नहीं करने दिया जाएगा, बिकॉज व्हेन यू विल गो इन हेवन then it will be supposed that you have done best works and you have to only you have to live in heaven and you have to feel all the desires, or you have to fulfill all your desires, you have to feel your satisfaction, okay, you have to fulfill your satisfaction, etc. Means only luxuriousness and comforts, relax and other desires, other pleasants you will find only in the heaven. But when you will complete, when you will finish all your conclusion or all other luxuries, when you will complete, then you have to come again on earth for doing your works, okay. Then you will prepare yourselves again for best works, etc. This cycle will also runs several times until you will not get moksha, okay. So यहाँ पे बता रहा है कि स्वर्ग और मोक्ष हो जाने पर तो कर्म होता नहीं, केवल यही एक जगह है जहाँ पर आप कर्म कर सकते हैं और उस कर्म के द्वारा आप अच्छे फल भोग सकते हैं, है ना। भरतस्यास्य वर्षस्य नवभेदान् निबोधत समुद्रांतरिता गियास्ते तो गम्या परस्परम। इस देश के बारे में बता रहे हैं कि जो भरत, यह जो देश है भरत का देश है, यानी यह जो पूरा पृथ्वी को ही उन्होंने बता दिया, यह पूरी पृथ्वी ही एक प्रकार से क्या है, भरत की ही संतान थी। भरत जो थे वो पूरी पृथ्वी पर शासन करते थे और उन्होंने 9 प्रकार का भारतवर्ष को उन्होंने क्या किया, 9 प्रकार का बताया कि देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ भारत, है ना। ये भारत के 9 प्रकार हैं, 9 पार्ट्स हैं, प्रकार नहीं, 9 खंड में है ये। और ये क्या है, ये एक दूसरे से समुद्र के द्वारा इनका पार्टीशन होता है, मतलब एक समुद्र के बाद फिर दूसरा जब क्षेत्र आता है फिर उसका पार्टीशन अलग अलग होता है। अब ये आप लोग ये मत सोचना कि क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये जो ये ज्योग्राफी बताया गया, ये भूगोल जो बताया गया, ये उस समय की है जिस समय पुराण होते थे। अब आज बहुत सारे ज्योग्राफिकल हम चीज़ों को या तो देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसी क्षमता भी नहीं, दिव्य क्षमता भी नहीं जिससे कि हम लोग अच्छी चीज़ें देख पाएँ, और बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं, बहुत सारा कुछ हुआ है। इसलिए ये बता रहे हैं कि इसके 9 पार्ट्स हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रद्वीप, अब यहाँ पर 9 जो भेद बता रहे हैं, 9 जो पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स, उसको यहाँ पर बता रहा है। कौन कौन से हैं? इंद्रद्वीप कशेरुमान ताम्रवर्णो गभस्तिमान नागद्वीपस तथा सौम्यो गांधर्वस्तथा वारुणः। यानी कौन कौन से 9 हैं? एक है इंद्रद्वीप, एक है कशेरुमान, एक है ताम्रवर्ण, एक है गभस्तिमान, एक है नागद्वीप, ओके। उसके बाद नागद्वीप, उसके बाद क्या आता है? सौम्य, एक सौम्य है, एक गांधर्व है और एक वरुण है। ये सारे नाम हैं अलग अलग द्वीपों के।
उसी तरह हमारा जम्बू द्वीप भी उसी में आता है। आगे देखते हैं। अयम तो नवमस्तेषां द्वीपसागर संवृत योजनानां सहस्त्रम तो द्वीपोयम दक्षिणोत्तरात्। मीन्स अयम मीन्स यह जो है द्वीप, यह भी उन्हीं 9 में से एक द्वीप यह है ना। द्वीप सागर समृता, यह जो द्वीप है इसको भी आइलैंड बता दिया गया। जनरली वी हैव ऑब्जर्व दैट आइलैंड also surrounded by any ocean or any very enlarged water, but here we are reading that this Bharatvarsh is also island because we are also surrounded by ocean. So तो यहाँ पर द्वीप सागर समृत, यह सागर से घिरा हुआ यह द्वीप है भारत। योजना नाम सहस्त्रम तो द्वीपोयम दक्षिणोत्तरात्, दक्षिणोत्तरात् मीन्स दक्षिण से उत्तर तक, मीन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दिस द्वीप, दिस आइलैंड इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग लेंथ। योजनम सहस्त्रम मीन्स 1000 ऑफ योजन, योजन मीन्स 1000 ऑफ किलोमीटर्स। 1 योजन इक्वल टू 3 कोशा एंड 3 कोशा इक्वल टू 3 × 4 इक्वल टू 12 किलोमीटर। मीन्स 1 योजन इक्वल टू 12 किलोमीटर, मीन्स सहस्त्र योजन मीन्स 12,000 किलोमीटर एक्सेट्रा। ये मेजरमेंट है एंशिएंट इंडिया का। तो उसमें बोल रहा है कि हजारों योजन, हजारों किलोमीटर की लंबाई है नॉर्थ टू साउथ भारतवर्ष की। तेषा ये हो गया। अयोजना नाम सहस्त्रम तो द्वीपोयम दक्षिणोत्तरात्। ओके। महेंद्रो मलय सह्य शुक्तिमान ऋक्ष पर्वतः विंध्यश्च पर्यात्रश्च इत्यते कुल पर्वताः। ये कुल पर्वत मीन्स ये पर्वतों के नाम बता रहे हैं। ये सभी कुल पर्वत हैं, यानी इनका नाम है कुल पर्वत। मेनली ये मुख्य पर्वत हैं जिनके नाम अलग अलग हैं पुराने। दिस ऑल आर माउंटेन्स आर वेरी एंशिएंट। इन आवर एंशिएंट इंडिया वी यूज्ड टू से टू दिस माउंटेन्स बाय दिस नेम्स ओनली, मीन्स एंशिएंट नेम्स। दैट वाज महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, सह्य पर्वत, शुक्तिमान, ऋक्ष पर्वत, विंध्य और पर्यात्र। दिस ऑल आर एंशिएंट नेम्स ऑफ आवर पर्वता। ओके। सो ये हमारे यहाँ पर भारत में पहले पर्वत बताया गया, पहले भारत का मान बताया गया कि ये कितना दूरी है, उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है ना। गंगा सरस्वती सिंधुश्चंद्रभागा तथा पर यमुनाश्च शतद्रुश्च वितस्तेरावती कुहु। ये अब रिवर्स के नाम बता रहे हैं। कौन कौन सी नदियाँ रहती हैं? गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा तथा यमुना, शतद्रु, वितस्ता, ऐरावती, कुहू। ये सारे नाम हैं जो अलग अलग नदियों के नाम हैं। और जो मुख्य नदियां हैं, नदियां तो हजारों हैं लेकिन छोटी छोटी नदियों को नदी संज्ञा भी नहीं दी जाती है। तो ओनली वी हैव डिस्क्राइब्ड हियर ओनली ऑस्पिशियस रिवर्स, वेरी वेरी मच ऑस्पिशियस एंड डिवाइन। ओके। वी ऑल्सो वर्शिप all rivers like our goddess. Ganga is our mother only. गंगा, यमुना, these all are mothers. okay. तो ये सब नदियों के नाम है, यानी हमारे भारत में ये नदियाँ ये रहती हैं पवित्र। विश्वश्च मातरः सर्वाश्चैव महाफला तथा नद्यः स्वप्रकाशः शतशोथसहस्रशः। मीन्स these all rivers are like very divine. They are very like our goddess. विश्वस्य मातरः, ये विश्व की माँ है। these all are the world mother of whole world. Sarvashchaiva Mahaphala, because they also gives us a lot of sweet water for irrigations, for quenching our thirst, for etc etc. तो यहाँ पर ये सारी नदियों का नाम है जो हमारी बहुत फलदायिनी, बहुत सारी चीज़ों को देने वाली हैं। और ये सब स्वप्रकाश यानी विद देयर ओन लाइट ओनली दे ऑल्सो ब्राइट्स, यानी कि उनके अपने ही प्रकाश से वे प्रकाशित होती रहती हैं हमेशा, बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये हो गया। और आगे तास्तु नद्य सरस्वत्य सर्वा गंगा समुद्रगा विश्वस्य मातरः सर्वा जगत पापहरा स्मृता। तास्तु नद्या मीन्स उन नदियों में से, वो गंगा और सरस्वती क्या हैं? वहीं समुद्रगा यानी समुद्र की ओर जाने वाली हैं, समुद्र तक। सारी नदियां समुद्र में नहीं मिलती, सबके भाग्य इतने अच्छे नहीं जो समुद्र से उनका समागम हो पाए। समुद्र के पास जाने के लिए उतनी होनी चाहिए। गंगा एक ऐसी है जो बिल्कुल समुद्र की ओर, और भी ब्रह्मपुत्र इत्यादि हैं जो समुद्र में जाकर के मिल पाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि समुद्र
तक जाने वाली जो नदियाँ होती हैं वही श्रेष्ठ मानी जाती है, जिसमें गंगा भी है, सरस्वती भी है। सरस्वती तो हालांकि विलुप्त प्राय है, मीन्स शी इज़ लाइक डिसअपियर्ड बट नॉट डिसअपियर्ड फुल्ली। आज भी हम लोग उनको दिव्य रूप में देखते हैं कि यहाँ पर हैं। विश्वस्य मात्रा सर्वा, और ये सारी विश्व की माताएं हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम लोगों को अन्न जल इत्यादि प्राप्त होता है। क्योंकि अगर हम सिंचाई, फसलों की उत्पत्ति इत्यादि जो भी करते हैं वह सब इन्हीं के कारण करते हैं। और जगत पाप हरास्मिता, और दे ऑल्सो रिमूव्स द सिंस, जो हमारे पाप हैं, सिनफुल वर्क्स हैं, उसके द्वारा जो भी पाप हैं वो सबको नदियाँ स्वच्छ करती है। हम लोग स्नान करते हैं और उसको स्नान करने के पश्चात हम लोग अपने आप को शुद्धि मानते हैं। ये हुआ। कपिले गो ग्रहे सोमे तीर्थे चालाभ संगीते मृत्युंजय कोड तीर्थे वासुके सिद्धकेश्वरे। यहाँ पर जो बहुत सारे अलग अलग तीर्थ क्षेत्र भी हैं। तीर्थ का मतलब ऐसा क्षेत्र जो बहुत ही पवित्र हो, ऋषियों की तपस्या के द्वारा जिसको शुद्ध कर दिया गया हो, ऐसे स्थान को हम लोग तीर्थ कहते हैं। जिसमें यहाँ पर कपिल तीर्थ, गोग्रह तीर्थ, सोम तीर्थ, अलाभ तीर्थ, है ना, मृत्युंजय तीर्थ, क्रोड तीर्थ, वासुकी तीर्थ, सिद्धकेश्वर तीर्थ इत्यादि, ये सब क्या है? ऋषियों के नाम है, ऋषियों के तीर्थ स्थल हैं, ऋषियों के रहने वाले स्थल हैं। इसलिए हम लोग इनका नाम लेते हैं कि ये हमारे भारत में रहने वाले तीर्थ, दिव्य तीर्थ हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी बता रहे हैं कि किस प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग जातियाँ, जनजातियाँ। जैसे पांड्याश्च केरलाश्चैव चोला कुल्यास्तथैव च सेतुकामुष्काश्चैव छपड़ा वनवासिका। यहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं? एक पांड्य कहाँ? साउथ इन वनली। चोल और पांड्य आप लोगों ने सुना होगा, बहुत एंशियंट उनका डायनेस्टी रहा करता था, तो उसमें पांड्य होते हैं, पांड्य। उसके बाद केरलाश्चैव, केरल जो केरला है ना, उसी केरला में ही रहने वाले जनजाति को केरल कहा गया, केरला। चोल को चोला यहाँ पर बोला गया है, चोला। कुल्यास्तथैव च, कुल्या अभी एक जाति का नाम है, जनजाति। और सेतुक, मूषिक और छपण, ये सभी वनवासी हैं, जो कि यहाँ पर उन्होंने हमारे भारत की ये सब क्या है? शोभा है, अलग अलग जनजातियाँ। ठीक। ज्ञेयं तद्भारतं वर्षं सर्वकर्म फलप्रदम अत्र कर्मणि कुर्वन्ति त्रिविधानि तु नारद। इसलिए ये नारद से कोई बोल रहा है कि हे नारद, पुराणों की बात है ना, एक्सट्रैक्ट किया गया है ना, तो वहाँ पर किसी ने उनसे बताया कि हे नारद, आप यह समझो कि यही भारत है जिसमें इतने प्रकार के पर्वत, नदियाँ, तीर्थ, है ना, सागर, ये सब कुछ हैं यहाँ पर। और हर प्रकार का कर्म का फल मिलता है यहाँ पर। कहाँ पर? भारत में। अत्र कर्माणि कुर्वन्ति त्रिविधानि तु नारद। यहाँ पर 3 प्रकार के, त्रिविध माने 3 प्रकार के कार्य सभी जीव करते हैं और उसका फल भी प्राप्त करते हैं। त्रिविध कर्म कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के काम, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। सात्विक सबसे विशुद्ध होता है, ज्ञानदायक होता है। रजोगुणी कर्म, काम, क्रोध, लोभ, भय, ये सब कुछ जो होता है वो सब क्रोध है, ये सब रजोगुण है। तमोगुण तो बहुत नीचा है, जिसमें भी इंसान को ये भी नहीं समझ में आता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। सोया रहेगा, पटाया रहेगा, आलसी, पीने वाले, खाने वाले सब लोग होते हैं, जिनको अपने कुछ मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से, वो है। तो ये सब 3 प्रकार की, ये सब सांख्य की बातें हैं, थोड़ा फिलोसफिकल बातें हैं। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता, बिकॉज हेक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए। तत्फलम भुज्यते चैव भोग भूमिष्वनुक्रमात् भारते तु कृतं कर्म शुभम वा शुभमेव च। तत्फलम भुज्यते means this is also saying about that whatever any person is also executing, okay, he will also find the conclusion of that work, karma, okay. So जो भी काम हम लोग यहाँ पर करेंगे उसी के अनुसार वहाँ पर हम लोग को फल भी मिलता है। यह भोग भूमि है। भोग भूमि का मतलब you have to also tolerate good or bad, okay, you have to find the conclusion of good or bad। तो यहाँ पर भारत में ही जो भी आप शुभ और अशुभ जो भी कर्म करेंगे उसका फल यहाँ पे भोग भूमि में प्राप्त करना होगा। आ फलक्षणम विप्रभुज्यते अन्यत्र जंतु भी अद्यापि देवा इच्छन्ति जन्म भारत भूतले। यानी कि जब तक हमारा फल का नाश नहीं हो जाए तब तक सारे ब्राह्मण यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर घूमते हैं, रहते हैं और यहाँ पर सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, सारे कर्म का फल प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर देवता भी चाहते हैं कि हम क्या करें? यहाँ पर जन्म लें। देवता लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर इस भारत भूमि पर हम लोग जन्म ले लें
और अपने आप को फिर और अच्छा काम करके हम लोग यहाँ से मुक्त हो जाएं, है ना। देवताओं के लिए भी यह अच्छा भूमि माना गया है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा। अब तो कलयुग में बहुत सारे लोग ऐसे पापपूर्ण हो गए हैं, लेकिन एक समय था जब भारत में सच में बहुत दिव्य क्षेत्र था। आयु प्रमाणम लभते ही राजन द्वीपेषु सर्वेषु नरो मयोक्तम कृत्वा शुभम कर्म तु भारतेस्मिन् द्वीपेषु सर्वेषु नरः प्रयान्ति। यानी आयु प्रमाणम, यहाँ पर सबका अलग अलग उम्र है, सबके लिए अलग अलग यहाँ पर बताया गया है कि कितना किस द्वीप में, 9 द्वीप जो बताया गया है भारत के, उस सारे द्वीप में सबका अलग अलग एज होता है ना। और जो भी जिस प्रकार का कर्म करता है उसी के अनुसार उसको उसी द्वीप में जन्म भी मिलता है ना। जिस प्रकार का कर्म करेगा ऐसे ही अच्छे अच्छे द्वीप में वो जाएगा, या बुरे बुरे जो भी होगा, जहाँ पर जैसे कर्म करेगा वैसा फल वहाँ पर पाएगा। इस प्रकार से यह लेसन जो है यह हमको बताता है कि हमारी भारत की क्या भौगोलिक, यानी जिसको ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट इसका क्या है, इसका महत्व क्या है, इस भारत में क्या ऐसा यूनिकनेस है जिसके वजह से हम लोग उसको कहते हैं, एडमायर करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं। वाई, इसी रीज़न को हम लोगों ने यहाँ पर देखा, पढ़ा। ये लेसन बहुत ही अच्छा है, हिस्टोरिकल, अपने जो हमारा हिस्ट्री को बताता है, जो हमारे कल्चर को बताता है, इन सारे चीज़ों से बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट हम आप लोगों को बाद में देखेंगे ये लेसन। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में केवल लिख दीजिएगा, आप लोगों का आंसर बिल्कुल मिलेगा परफेक्ट। थोड़ा देर हो सकता है मे बी।